God is very grieved with a generation of people who have a false sense of spirituality. और ऐसे लोग जो आत्मिकता के क्षेत्र में गलत जिनका धारणा है, उनके प्रति परमेश्वर बहुत दुखित है। They think वो सोचते हैं they are pleasing God. और वो सोचते हैं कि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं। But God is saying, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं, your prayer and your fasting is nauseating me. और तुम्हारी जो प्रार्थनाएं हैं, तुम्हारे जो उपवास है, मुझे उससे मैं अघा गया हूँ। Yes, you see. So let us turn to Jeremiah chapter 36. और 36 अध्याय यिर्मयाह नबी की पुस्तक को हम पढ़ते हैं। I've been reading this chapter and I find how people are deceiving themselves thinking they are pleasing God. और जब इस भाग को जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे इस बात का मैंने पाया कि कैसे लोग जो हैं परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं कह करके अपने आप को धोखा देते हैं। Yes. See, many of the churches, many of the so-called believers, they are deceiving themselves because they are not knowing the heart of God and they are not obedient to the voice of God. और बहुत सी कलीसियाएं और बहुत सारे विश्वासी जो कहलाते हैं, कलीसिया कहलाते हैं, वो परमेश्वर को जानते हैं कह करके उसे धोखा दे रहे हैं, जबकि परमेश्वर के हृदय को, उसके हृदय की बातों को नहीं जानते। Here was a time after Josiah who destroyed all the, all the high places, and even he destroyed, as it was prophesied by a prophet, that the golden calf of Jeroboam will be completely destroyed. और यरूब्बाल के द्वारा से जो सोने का बछड़ा बनवाया गया था, भविष्यवाणी के तहत कि योसिया जो राजा था उसने क्या किया, उस सब ऊंचे स्थानों को और उस बछड़े को, सब कुछ को उसने सत्यानाश कर डाला। It is very interesting to see that if you look into the life of Josiah, that there was after Hezekiah there was no king like Josiah who repented before God. और जो योसिया के इससे समान दूसरा कोई राजा नहीं यहोयाकीम के पहले के कि उसने जिसने परमेश्वर को खुश किया और ऊंचे स्थानों को नाश किया। Yes. So if you I see, don't go through the scriptures just like that. और कभी भी आप जब खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो ऐसे ही पढ़ते न चले जाएं। Go into the depth and see the truth of what the Lord is trying to tell us. और उस भाग को जब आप पढ़ते हैं तो उसके गहराई पर जाएं और जानें, सीखें और देखें कि परमेश्वर वहाँ पे क्या आपसे कहना चाहते हैं। You know, this Bible is a red signal to all of us as to how we have to live in this world. और बाइबल एक किताब, ऐसी किताब है जो संसार में हमें जीने के लिए एक लाल बत्ती का सिग्नल हमें देता है। So, see, I am giving you a brief account of Josiah's life, and it says that a book was found by Hilkiah in the temple, and they went to Huldah, the prophet, and they said what we should do, and there was a national repentance in the when Josiah was king. और योशिया जब राजा था और जब एक किताब पाई गई तो उस किताब को उसने लेकर के हिल्किय्याह के पास गया और एक जो राष्ट्रीय जो उपवास जो सभा रखी गई। Yes, that you will find in the Kings, in the second Kings you will find, and also in Chronicles you will find. I am not going to go into the details of it. You go home and read. What I am trying to say was that though Joshua
Josiah, he became king at a very small age. और आप देख सकते हैं कि योशिया जो व्यक्ति है वो बहुत कम उम्र में राजा बना। Yes, but God's heart was grieved completely because the kings of Judea, they were time and again they were breaking the law of God and they were grieving the heart of God. और जो यहूदा का जो राजा था यहोवा की, उसने पूरे तौर से परमेश्वर के हृदय को बहुत ज्यादा से दुखित कर दिया था। Even though Josiah, Manasseh, he was Josiah was the grandson of Manasseh, and Manasseh was the most wicked king in the kingdom of Judah. और आप देख सकते हैं जो यहूदा के राजाओं में से जो मनस्से था वो बहुत ही दुष्ट राजा था, जबकि योशिया उसका पोता था। And we see Josiah's life was prophesied even 400 years before Josiah was born. और यहाँ तक कि योशिया के जन्म से पहले ही 400 साल पहले जो है उसके बारे में भविष्यवाणी हो चुकी थी। So he brought a reconciliation and he brought a national repentance not only in Judah but also in Israel. और योशिया ऐसा राजा हुआ जिसने सिर्फ यहूदा ही नहीं, यहूदा में भी और इस्राएल में भी जो है मेल मिलाप और एक राष्ट्रीय पश्चाताप के प्रार्थना को स्थापित किया। So he destroyed all the high places, he destroyed all the idols, he destroyed everything in the kingdom of in the nation of Israel. और इस्राएल के अंदर में योशिया राजा जो है सभी ऊंचे स्थानों को, उन मंदिरों को, वो तमाम चीजें जो यहोवा के खिलाफ थे, सब चीजों को उसने सत्यानाश कर दिया। But unfortunately it was very late. लेकिन दुर्भाग्य से ये बहुत देर हो चुका था। And the prophet Huldah said, only during the time of Josiah there will be peace. After that, the whole country of Israel will go as captives to Babylon. और दुर्भाग्य से हम देख पाते हैं कि हुल्दा ने इस बात को रखा कि सिर्फ योशिया के शासन काल में ही वहाँ राज्य में शांति बनी रही, उसके बाद जो राजा बने वो सब लोगों ने हिस्सेदारी करी और सब कुछ नाश My friend, this is a dangerous precedence for us. That we have to learn from the Bible. Sometimes even if you are repenting, it can be very late. और मेरे मित्रों, ये जो भाग है इससे हमको सीखना चाहिए। हमारे लिए एक ऐसी तस्वीर प्रस्तुत करता है जो वर्तमान में हम इसको सीख सकते हैं कि कई बार हम अपने जीवन में पश्चाताप तो करते हैं, लेकिन होता यह है कि पश्चाताप करने में भी हम काफी देर हो चुके होते हैं। A few kings were like Josiah, but unfortunately, time has it became very late for the kingdom of Judah to repent, because by the time all the kings they were so wicked, God's heart was grieved. और योशिया के समान कुछ एक राजा हुए। योशिया जो अच्छा राजा रहा, लेकिन यहूदा के क्षेत्र में देखते हैं, यहूदा के राज्य में देखते हैं कि जितने भी राजा वो हुए सब दुष्ट और ऐसे अंधेर करने वाले, परमेश्वर को दुखित करने वाले राजा हुए। So this is a warning for all of us. और हम सब के लिए एक बड़ा जबरदस्त चेतावनी है प्रियो। We are living in a time in the Bible, if you go to Revelation, it talks about the church of Laodicea. आप मेरी प्रकाशित वाक्य में जाकर देखेंगे तो कलीसिया लौदीकिया के बारे में बताता है। The Spirit of God says in the church of Laodicea is neither hot nor cold. और लौदीकिया की कलीसिया को परमेश्वर ने कहा या तो तू ठंडा हो जाए या तो गर्म। God says, I will spit you out. और यदि तू गुनगुना है तो मैं तुझे उगल दूंगा। You see,
this generation, ये पीढ़ी जो है, अभी का जो समय के लोग हैं, पीढ़ी जो है, we are in this kind of time. और हम ऐसे ही परिस्थितियों में चल रहे हैं। And it may become too late if your family doesn't repent. यदि आपका संपूर्ण परिवार पश्चाताप नहीं करता है, तो हो सकता है आपके लिए काफी देर हो चुका होगा। And this is a time for all the churches, to they believe in entertainment, they believe in all kinds of preset of agendas, and the spirit of God has left the place. और कलीसियाओं में इन दिनों में क्या हो रहा है, नाना प्रकार के एजेंडे पर वो कलीसिया चलाते और नाना प्रकार के वो वहाँ पे मनोरंजन और जो हंसी और खुशी और मतलब एक राग और मनोरंजन को करते हैं, जो कि परमेश्वर का आत्मा कलीसियाओं से नदारद है। They want to aid the cinema industry and make the church a place of tamasha and entertainment, and the holiness of God is not there. और उन्होंने अपने कलीसियाओं को, मेरे प्रियो, जैसे फिल्म दुनिया में होता है वैसे वो वहाँ पर तमाशा करते और नाना प्रकार के जो है रंग बिरंगे और कार्यों को करते हैं, और परमेश्वर की उपस्थिति पूर्णतः कलीसियाओं से जा चुकी I am warning you. मैं चेतावनी देता हूँ आपको, If you do not intercede for your families, they are bound to destruct. और यदि Go to destruction. यदि आप अपने परिवार के प्रति मध्यस्थता की प्रार्थना या मध्यस्थता नहीं कर पा रहे हैं, तो एक वक्त आएगा कि आपका परिवार नाश होने के लिए बांधा जाएगा। You say, sir, you are very radical. You are very, brutal. You are very brutal. God is love. That is what is written in the Bible. God is love. God will forgive all your sin. और आप कह सकते हैं कि सर आप बहुत कठोर हैं, बहुत ही कठिन बातों को कह रहे हैं, कठोर बातों को कह रहे हैं, पर आप कहते हैं परमेश्वर प्रेम है और वो आपको क्षमा कर देगा। And they say you are mental, और you are mental. दिमागी दिवालियापन है आपके अंदर, ऐसा सोचते You are हैं। fanatic. आप जो है एक दिवालापन है, पागलपन है आपके अंदर। You are always scolding people because because you don't love people. और लोगों की एक गलत धारणा ये हो गया है, या गलत धारणा रखते हैं कि तुम हर समय लोगों को डांटते, तुम प्रेम नहीं करते। That is what they told about Jeremiah. और इसीलिए यिर्मयाह के बारे में यहाँ लिखता है। They said Jeremiah was mental. When Jeremiah warned them, they put him in the prison. और यहाँ पर देखते हैं जो यिर्मयाह नबी था, उसने जब सच्चाई का आईना दिखाया, सत्य को लोगों को बताया, तो लोग क्या किए, उसको पागल करार दे दिए और उसे जेल में डाल दिए। Yes, people want a very sweet gospel. और लोग जो है मीठा मीठा वाला सुसमाचार चाहते हैं। They don't want me to hurt their sentiment. और उनके अंदर की जो बातें उसके प्रति उनको चेताऊं, ये लोग नहीं चाहते हैं। They don't want me to talk about holiness. और मैं पवित्रता पर उनको सिखाऊं या बताऊं, ये लोग नहीं चाहते They हैं। want me to give a gospel in a platter without any consequence. और लोग ऐसे सुसमाचार मुझसे सुनना चाहते हैं जो बड़ा ही एकदम सीधा सीधा हो, और जो क्या कहना चाहिए कि जिसमें कोई तकलीफ ना हो। The Bible says God is love. बाइबल बताती है परमेश्वर प्रेम है। But the word God, the Bible also says God is a consuming fire. God is wrath. और बाइबल ये भी बताती है कि परमेश्वर क्रोध से भरा है और वो बदला लेने वाला, दंड देने वाला परमेश्वर है, परिणाम देता है। The God we worship is a holy God. और हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं वो पवित्र है। That's what is said in Peter. Be holy, for I am holy, and you are called to be holy. और इसीलिए दूसरे पत्रस इस बात को लिखता है कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो, तुम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हो। In Matthew chapter 5, last verse, it says, be perfect,
for your Father in और heaven is मत्ती रचित perfect. सुसमाचार 5वें अध्याय के आखिरी पद में इस तरीके से कहता है, सिद्ध बनो क्योंकि मैं सिद्ध हूँ। Yes, when they talk about perfection, when they talk about holiness, they say you are a fanatic. और जब मैं पवित्रता या सिद्धता पे बातें करता हूँ तो लोग मुझे पागल समझते हैं। Not everybody will come into this place. और हर एक वो यहाँ पे नहीं आएंगे, Because the gospel I give is not sweet, it is bitter. क्योंकि जो समाचार मैं सुनाता हूँ वो मीठा नहीं कड़वा है। Because I know the pulse of the generation. क्योंकि मैं पीढ़ी के नब्ज को, उसके नब्ज को जानता हूँ। Yes, all these mega churches, they have entertainment, they have all kinds of tamasha, and they believe if I have 50,000 people, I am a successful pastor. और जितने बड़े बड़े कलीसियाएं हैं वहाँ पर तमाशा और मनोरंजन बहुत ज्यादा होते हैं और वो सोचते हैं हमारे पास 50,000 5,000 जनसंख्या होगी, हम एक सफल पास्टर हैं। Entertainment, program, and they have a vision, how to bring people into the kingdom of God, but they will not talk about holiness. और वो परमेश्वर के राज्य में लोगों को लाने के लिए दर्शन तो होता है, सब प्रकार का तमाशा मनोरंजन होता है, लेकिन वो खराई के साथ परमेश्वर की पवित्रता और सिद्धता पे वो प्रचार नहीं करते। When you look into the chapter of John 6, when Jesus said, out of the 80 disciples, only 12 remained with them. और आप देख सकते हैं कि जो इतने चेले थे, प्रभु यीशु मसीह ने जब वहाँ यूहन्ना में बात करी तो सिर्फ 12 ही रुके थे उसके पास। You see, God sometimes, God, even when God told Gideon to go and fight the Midianite, और जब परमेश्वर ने गिदोन से कहा मिद्यानियों से जाके युद्ध कर, from 15,000 he started chiseling and only 3,300 people came. और 15,000 लोगों में से जब उसने छटाई शुरू करी तो मात्र 300 लोग सही योद्धा के रूप में से। Why only 300 people came? Because God chose only 300 people. क्यों लोगों 300 ही लोगों को परमेश्वर ने चुना? Because majority of them were afraid. क्योंकि अधिकांश जो लोग थे वो डरने वाले भयभीत लोग थे। The majority of the people were worshipping idols. क्योंकि अधिकांश जो लोग थे उसमें से वो जो है मूर्ति पूजक थे। See, God is looking at people, their life. Your life is very important. God will not use all the rubbish in this world. और परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है। कैसे लोगों को ढूंढता है? उनके जिंदगियों को देखकर उनका जीवन कैसा है उसके आधार पे उनको चुनता है। वो बेकार लोगों को नहीं चुनता। God can use only 300 people to win 15 lakhs people. It doesn't need a great army for God. और यदि उन 3 लाख लोगों को जीतना था तो 300 लोग पर्याप्त है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर को जरूरत नहीं है कि बहुत बड़ी सेना की जरूरत हो। So now let us turn to Jeremiah chapter 36. आइए हम 36 अध्याय यिर्मयाह नबी के पुस्तक। This is the son of Josiah. Josiah was a good king, but all his children were wicked. और योशिया के जो पुत्र यहोयाकीम योशिया जो राजा था बहुत बढ़िया राजा था, लेकिन उसके जो पुत्र थे वो सब दुष्ट थे। Now verses 1 to 6 पढ़िए। और 1 से 6 तक मैं पढ़ूंगा आपके लिए। फिर योशिया के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 4थे बरस में यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, एक पुस्तक लेकर जितने वचन मैंने तुझसे योशिया के दिनों से लेकर अर्थात जब मैं तुझसे बातें करने लगा उस समय से आज के दिन तक इस्राएल और यहूदा और सब जातियों के विषय में कहे हैं, सबको उसमें लिख। क्या जाने यहूदा का घराना उस सारी विपत्ति का समाचार सुनकर जब मैं उन पर डालने की कल्पना कर रहा हूँ अपनी बुरी चाल से फिरे और मैं उनके अधर्म और पाप को क्षमा करूँ। अतः यिर्मयाह ने नेरिया के पुत्र
बारूक को बुलाया और बारूक ने यहोवा के पास वचन जो उसने यिर्मयाह से कहे थे यिर्मयाह के मुख से सुनकर पुस्तक में लिख दिए। फिर यिर्मयाह ने बारूक को आज्ञा दी और कहा, मैं तो बंधा हुआ हूँ, मैं यहोवा के भवन में नहीं जा सकता, इसलिए तू उपवास के दिन यहोवा के भवन में जाकर उससे उसके जो वचन तूने मुझसे सुनकर लिखे हैं पुस्तक में से लोगों को पढ़कर सुनाना। 7th verse, yeah, buddy. और 7वें पद में हम आएंगे। क्या जाने वे यहोवा से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करें और अपनी अपनी बुरी चाल से फिरें, क्योंकि जो क्रोध और जलजलाहट यहोवा ने अपनी इस प्रजा पर भड़काने को कहा वह बड़ी है। You see, now Jeremiah is saying that you have to repent. और यिर्मयाह यहाँ पर कह रहा है कि तुम्हें पश्चाताप करना होगा। But you see, and what happens? People say we are 9th verse पढ़िए। और 9वें पद में लोग क्या कहते हैं उसको देते हैं। योसिया के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 5वें बरस के 4थे महीने में यरूशलेम में जितने लोग थे और यहूदा के नगरों में जितने लोग यरूशलेम से आए थे उन्होंने यहोवा के सामने उपवास करने का प्रचार किया। It looks very nice, ना? और ये ऐसा लगता है genuinely they were repenting. और ये इसको देखने से ऐसा लगता है कि सच में ये लोग ऐसा किए हो। See, that is the state of the church. और यही है कलीसियाओं की स्थिति। No, you think that you are in a fasting prayer, thinking that will please God. और आप सोच रहे हैं कि आप उपवास प्रार्थना में हैं और जिस उपवास प्रार्थना में आप हैं उससे आप परमेश्वर को प्रसन्न कर देंगे। See, don't deceive yourself. तो अपने आप को आप धोखा न दें। Just because you are fasting, it doesn't mean God is pleased with your fasting. और ऐसा नहीं है कि आप उपवास में हैं इस और परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो गया। Isaiah 26 and 29 it says that they praise with their mouth, but their heart is far away from me. और यहाँ लिखता है 29 अध्याय के 13वें पद में Okay, even in 15th is also that. Matthew 15 पढ़िए। Matthew 15, yeah. और मत्ती 15 में हम आ जाएंगे। The same what Isaiah prophesied, Jesus said about that. और जो चीज यशायाह नबी ने बोला था वही बात यहाँ पर ये भी बोलता है। Jesus referred to what Isaiah said in Isaiah 29:30. Jesus refers that in Matthew 15:8 and 9. और 8 और 9 में वही बात 7 से पढ़िए, 7 से और 7 से मैं पढ़ूंगा, 15 अध्याय के 7 से लेकर के पढ़ूंगा। हे कपटियों, क्या बोला है? हे कपटियों, हिपोक्रेट्स, है ना? लोग मेरे को बोलते हैं यीशु मसीह किसी को नहीं डांटा है, यीशु मसीह सबको प्यार करता है, किसी को नहीं डांटता है। इधर देख रहा है what he said? Hypocrites. You know, in other words, he said, you whitewash sepulchres. उसका मतलब है तुम लिपे पुते कब्र हो। यीशु मसीह बोल रहा है, यीशु मसीह ने कह रहे हैं यीशु मसीह प्यार करता है। धोखा मत, don't deceive yourself. अपने आप को धोखा न दें। If I say something very hard, they say you are not like Jesus. Jesus is always loving. और जब मैं कोई कठिन बात को बताता हूँ वचन से तो कहते हैं आप यीशु के समान थोड़ी ना व्यवहार करो, और ये बहुत खराब है। Rubbish. Jesus said, you hypocrites. यीशु ने कहा हे कपटियों। Why did he say you are hypocrites? और क्यों उसने ऐसा कहा? The people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far off. और क्या कहते हैं? ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। You see, so just because you are fasting
God is not impressed. और सिर्फ आपके उपवास रह जाने से, उपवास रहने से ईश्वर परमेश्वर खुश नहीं हो जाते हैं। Because He knows your heart is very far away. You are a very disobedient, rebellious generation. क्योंकि परमेश्वर इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि आप विद्रोही हैं, बलवा करने वाले हैं, उल्टा सीधा सोचने वाले हैं और आपका दिल बहुत दूर है। You see? So here the king says in 9th verse, now it came to pass in the 5th year of Jehoiakim, the son of Josiah, king of Judah, in the 9th month, that they proclaimed a fast before the Lord. और वो कहते यहाँ पर लिखा है, उन्होंने यहोवा के सामने उपवास करने का प्रचार किया। Read your Bible properly, my friend. You don't read your Bible, that is the problem. और आप बाइबल को ठीक से पढ़ते नहीं और समझते नहीं, ये समस्या है आपके साथ। You know, so who Malin is fasting, great, बहुत spiritual woman है। और वो फला व्यक्ति उपवास कर रहा है, बहुत आत्मिक महिला है। But your heart is very far away. उपवास से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आपका दिल कहाँ पर है, दिल किधर है। You know why I am saying this? और मैं क्यों इस बात को कह रहा हूँ? So let us look into why I am saying it is far away. और मैं क्यों कह रहा हूँ कि दिल, आपका दिल तुम्हारा बहुत So दूर है। let us read from 15, 16 and 17. Same chapter? Same chapter, 35, 36. Yeah. It came. They said to him, "Sit down now and read it in our hearing." So Baruch read it in their hearing. Now it happened when they heard all the words, they looked in fear. Yeah, परमेश्वर के वचन अच्छा बोलने से हमें डर लगता है। Yeah, तुम लोग मर जाएंगे मैं बोलते ना, डरना आना, डरना आना। और 15वीं आयत को मैं पढ़ूंगा आपके लिए। तब उन्होंने उससे कहा, अब बैठ जा और हमें यह पढ़कर सुना। तब बारूक ने उनको पढ़कर सुना दिया। जब वे उन सब वचनों को सुन चुके, तब थरथराते हुए एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने बारूक से कहा, हम निश्चय राजा से इन सब वचनों का वर्णन करेंगे। The Bible says they are fasting. Now they are the Bible says they are fearing, but look at their reactions after some time, whether they are fasting or genuinely the fear of God is there. और यहाँ पर देखते हैं कि वो उपवास का प्रचार कर रहे हैं, उपवास के लिए तैयार हो गए हैं। अब दूसरी बात है कि वचन सुन के थरथराने लगे हैं, लेकिन आगे हम देख पाएंगे क्या सच में वो उपवास कर रहे थे या थरथरा रहे थे। Verses 18 and 19. और 18वीं और 19वीं आयत पर देखेंगे, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। बारूक ने उनसे कहा, वह आपका पीछे बोले, मेरे पीछे बोले। बारूक ने उनसे कहा, बारूक ने उससे कहा, वो ये सब वचन अपने मुख से मुझे सुनाता गया और मैं उन्हें पुस्तक में स्याही से लिखता गया। तब हाकिमों ने बारूक से कहा, जा तू अपने आप को और यिर्मयाह को छिपा और कोई न जानने पाए कहाँ हो। यही होता है। You see, when somebody is telling the truth, go and hide. Go and hide. Why is asking to go and hide? See, they were fasting, but what was Jeremiah doing? He was warning. You see the difference? और आप देख सकते हैं कि you read it in detail. और you read it in detail. और जब आप पढ़ते हैं खुदा के कलाम को, उसको पूरे डिटेल के साथ, पूरे उसकी सामग्री के साथ पढ़ें। What was the reaction? उसका रिएक्शन क्या हुआ? Now, if they are genuinely have repented, this would not be the reaction. और यदि वो सच में पश्चाताप किए होते, तो इस तरीके से उनका प्रतिक्रिया न होता। Verses 23 and 24. और 23वीं और 24वीं आयत में मैं पढ़ूंगा। जब यहूदी 3-4 पृष्ठ पढ़ चुका, तब राजा ने
उसे चाकू से काटा। हाँ, देखिए क्या किया, चाकू से काटा। जो कुछ यिर्मयाह ने बोला उसको काटा। हाँ, हाँ? राजा ने उसे चाकू से काटा और जो आग अंगीठी में थी उसमें फेंक दिया। इस प्रकार अंगीठी की आग में पूरी पुस्तक जलकर भस्म हो गई। You tell me now, did he really repent? अब बताइए क्या सच में पश्चाताप किए थे? If he had really repented, यदि सच में पश्चाताप किए you know, होते, whenever a people repent in the olden days, they put sackcloth and ashes. और पुराने समय में, पुराने नियम में लोग जब पश्चाताप करते थे तो उसको कैसे पश्चाताप करते थे? अपने पर टाट ओढ़ते थे, अपने पर राख डालते थे और पश्चाताप करते थे। Whenever something was written in the law or in the book, what they do, the immediate reaction was, repentance, going down on their knees, coming down in और sackcloth. उस समय में जब कभी भी खुदा का कलाम आता या उसकी आज्ञा को पालन करने की बात आती थी तो वो क्या करते थे? घुटने पे आ जाते थे, पश्चाताप करते थे, रोते थे, बिलखते थे। But what was the reaction of the लेकिन king? यहाँ पर पश्चाताप कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन उनका प्रतिक्रिया क्या So, क्या है? God is not impressed with your fasting. तो इसलिए परमेश्वर आपके उपवास से कोई रुचि नहीं रखता। धोखा मत करना. Don't deceive yourself. No? Just because you are praying in the morning, 5 o'clock or 6 o'clock in the morning, God is not impressed. और यदि आप सुबह से लेके दोपहर तक प्रार्थना करें, इसका ये मतलब नहीं है कि आप परमेश्वर को प्रसन्न कर That is only your routine. ये आप एक रूटीन में हैं। That is what you are being taught. You are doing it without any meaning, no sense in what you are doing. There is no power, there is no conviction. Just because everybody is doing, you are doing. और कई होता यह है कि आपको सिखाया गया है कितने बजे से इतने बजे प्रार्थना करना, आपने एक रूटीन पकड़ लिया, डेली उसकी प्रार्थना करते हैं, लेकिन उस प्रार्थना के अंदर आप अंदर से कायर नहीं हो रहे, There is no आप power. अंदर से पश्चाताप नहीं हो रहा है, There is वहाँ no पे कोई con- सामर्थ्य नहीं है, There is वहाँ no पे conviction. कोई कायरता नहीं है, कोई आप अंदर से Oh. कुछ कायर नहीं हो रहे, दर्शन नहीं है वहाँ पर। That is what is happening. लेंट में 40 दिन में प्रार्थना करता और हूँ. यही होता है एक रिवाज के रूप में 40 दिन हम उपवास रहेंगे और एक रिवाज को पालन मैं करेंगे। मटन नहीं खाऊंगा, चिकन नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, बट जीवन कितना खराब है वो नहीं सुधरते हैं ना, वो नहीं लेकिन जीवन सुधरते में हैं कोई ना. सुधार नहीं आता। हैं? क्यों? सब लोग लेंट में 40 दिन उन लोग उपवास करते हैं. 40 दिन के बाद योर लाइफ बिकम्स नॉर्मल, dirty, filthy, horrible. There is no meaning and sense in your fasting. और आपके उपवास होने का कोई सेंस नहीं, कोई महत्व नहीं, कोई मतलब नहीं, वैसा ही परिस्थिति पहले जैसी। कितना जिद रहते उतना ही जिद रहेंगे. जितना जिद्दी हो उतना ही जिद्दीपन बना हुआ है, उतना ही क्रोध बना हुआ है, उतना ही जलन बना हुआ है कहना। कितना you are full of ego. और कितने घमंड से भरे हुए हैं अभी। 40 दिन उपवास करते हैं. ओ मालिक तुम ठीक नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ. तुम कौन बोलता है? तुम कौन होता है और यदि मेरे को बोलने के लिए? और प्रभु का दास जब कहते हैं किसी व्यक्ति को, किसी शख्स को कि तुम्हारा जीवन ठीक नहीं है, यहाँ पर गड़बड़ी है, तो वो चिल्ला के कहते हैं कि तुम कौन होते हो? सबके सामने मेरे को शर्मिंदा किया. मेरे को सबको सामने शर्मिंदा कर दिया। भूत है ना, अंदर भूत है, अंदर भूत है. So here the king declared repentance, but what was his reaction? और जब राजा ने तो यहाँ पर उपवास का प्रचार तो करवा दिया, लेकिन लोगों का प्रतिक्रिया क्या है? Verses 24 and 25. और 24 और 25वें आयत में हम देखेंगे, परंतु न कोई डरा। No, they were not afraid. They were not afraid of the warning of Jeremiah. और यिर्मयाह के जो चेतावनी है उससे कोई नहीं डर रहा है यहाँ पर। न कोई डरा और न किसी ने अपने कपड़े फाड़े, अर्थात न तो राजा ने और न उसके कर्मचारियों में से किसी ने ऐसा किया। उन्होंने वे सब वचन सुने थे। एलनातान और
दलिया और गमिया ने तो राजा से विनती भी की थी कि पुस्तक को न जलाए, परंतु उसने उनकी एक न सुनी। मैं कितना में प्रार्थना वो प्रचार करते हैं, कितना भी करते हैं, कितना कैसा आते हैं वैसा ही वापस जाते हैं। What should I do? और सब मैं इतना सब कुछ करने के बाद भी जो प्रजा है वैसी बनी हुई है, मुझे अब क्या करना चाहिए? I am a voice crying in the wilderness, repent, you generation of vipers. और मैं मरुभूमि में पश्चाताप के लिए चिल्लाने वाला व्यक्ति हूँ कि पश्चाताप करो करके, लेकिन जो पीढ़ी है वो सांप के बच्चों के समान। They don't want repentance. वो पश्चाताप नहीं चाहते, They want blessing. वो आशीष चाहते। सर आ गया, मेरे को आशीष दिया, संतुष्ट है, को भी संतुष्ट है, मेरे को ध्यान, you are willing to give me offering because I am blessing you. I will not take your offering. That last week one woman came, I said I will not touch your offering. I will not touch लोग your सोचते हैं कि मैं भेंटों या दानों को लेकर के खुश या प्रसन्न हो जाऊंगा। अब पिछले 2 सप्ताह पहले एक महिला आई कुछ भेंटों को लेके, मैंने उसके भेंटों को रिफ्यूज कर दिया, मैंने नहीं लिया उससे। परमेश्वर भिखार नहीं है, he is not a beggar and I am the servant of God, I am not a beggar. और मेरा परमेश्वर भिखारी नहीं है और मैं उसका सेवक, उसका दास हूँ, मैं भी भिखारी नहीं हूँ। You understand? आप समझ रहे हैं मेरी बात? God is looking for genuine repentance. और परमेश्वर आज भी सत्य सही रीति से, सत्य रीति से पश्चाताप करने वाले लोगों को ढूंढता है। In 1 Samuel, he says, what does he say? Sacrifice, obedience is better than sacrifice. और पहले सामुएल में वह लिखता है, आज्ञा पालन करना बलिदान से उत्तम है। Disobedience is equivalent to witchcraft. और जो अनाज्ञाकारिता है वो भाविक कहलाने वाले जैसा है। Stubbornness is equivalent to what? Idol worship. और जो जिद्दीपन है, कठोर जो ढिठाईपन है, वो मूर्ति पूजा के समान है। Yes. Yes. You think you are a Christian? आप सोचते हैं आप मसीह हैं? You are an idol worshipper. आप मूर्ति पूजक हैं। Because you are stubborn, एक जिद्दी आत्मा, rebellious. बलवा करने वाले। You don't want to. Your all your praise and your prayer is in your mouth. और आपकी जितनी भी जो उपासना या आराधना के गीत है वो सिर्फ होठों तक है, दिल से नहीं है। मैं बुरा बन जाता है, मैं बुरा बन जाता है। Why you are not like? Why are you criticizing others? Why are you saying like others? और लोगों का कहना होता है, आप क्यों दूसरे की आलोचना करते हैं? You mind your own कह रहे हो? business. Then God will judge me if I am not going to warn people. मैं आप लोगों को चेतावनी नहीं दूंगा एक सेवक होने के नाते, तो खुदा मुझ पर दंड लाएगा, मुझे मेरा न्याय करेगा। You are sitting in my presence and you want to cover all the sins. क्या आप मेरी उपस्थिति में बैठ कर के सारे पापों पर पर्दा डालना चाहते हैं? What are you reading? This is the Bible. It's not my word. ये देखिए मेरा वचन नहीं, ये तो खुदा का कलाम है। है ना? I couldn't go ahead of Jeremiah 36 chapter. Why? There's so much in this verse. और जब मैं इस अध्ययन किया था तो इस अध्याय से मैं आगे नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि बहुत गंभीर बातें यहाँ पर। Verses 26. और उसके बाद हम 26वीं आयत पर आएंगे प्रियो। राजा ने राजपुत्र यरहमेल को और अब्रियल के पुत्र सराया को और अब्देल के पुत्र सेलैया को आज्ञा दी कि बारूक लेखक और यिर्मयाह भविष्यवक्ता को पकड़ लो, परंतु यहोवा ने उनको छिपा रखा। You see, nobody can touch me. और आप देख सकते हैं कोई मुझे छू नहीं सकता। As long as I am speaking the truth. और जब तक मैं सत्य को कह रहा हूँगा। No power on this earth, no idiotic person, no fool, whatever they criticize, God said, I will make them ashamed because you are a person who knows my heart.
they only praise me with their lips, but their heart is far away. और वे सारे लोग जो मेरे खिलाफत हैं या जो बेवकूफ हैं, नरबुद्धि हैं, बुद्धिहीन हैं, वो शब्द जो हैं लज्जित होंगे। Yes, yes. वो सब लज्जित होंगे और Sir, कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। you're always angry. You're always scolding. और लोग ऐसा कहते हैं कि तुम हर समय डांटते हो, क्रोध, गुस्से में रहते हो। When sin को sin बोलना पड़ता है. और गुनाह को गुनाह बोलना It's पड़ता है। not because I don't love. और मैं इसे मेरा बोलना इसलिए नहीं है कि मैं आपसे प्रेम नहीं I करता, know the consequence of sin. क्योंकि मैं गुनाह के परिणाम को जानता हूँ। I know the consequence. मैं गुनाह के परिणाम को जानता हूँ, इसलिए बोलता हूँ। The God we worship is a holy. क्योंकि जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं वो पवित्र है, समझौता वाला नहीं है. समझौता वाला परमेश्वर नहीं। समझौता वाला जाओ, बहुत बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जाओ, अच्छा बोलेंगे, इधर नियम को पालन करना, इधर आने से नियम का पालन करना वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी आर रेसिंग अ होलीनेस जनरेशन. क्योंकि हम एक पवित्र प्रजा को खड़े कर रहे हैं A generation will not compromise with evil. और ये पीढ़ी जो है बुराई से समझौता नहीं करेगी। Hallelujah. हालेलुया। खड़े हो जाए. खड़े हो जाए। Tell God. कहे प्रभु से If the Spirit of God is talking to यदि you, परमेश्वर की आत्मा आज आपसे बातें कर रहा है, If God is talking to you, यदि खुदा आपसे बात कर रहा Tell है, God. कहे प्रभु से, oh परमेश्वर, ओ मेरे मैं आपसे बहुत दूर हो मैं गया. आपसे बहुत दूर हो I गया, have gone very far away मैं आपसे from. बहुत दूर हो गया, I repent for my मैं sin. अपने गुनाह के लिए Yes. पश्चाताप करता हूं। If a man of God is saying something, I want to listen to. और खुदा का दास, प्रभु का जन आज कह रहा है कुछ मुझसे, तो चाहिए कि मैं सत्य पश्चाताप करूं। He that has ears, let him hear. और जिनके कान है वो सुन लें, He that has got eyes, let him जिसके see. आंखें हैं वो देखने लगे। This is the voice of ये God. परमेश्वर की आवाज है। If you want to repent, you repent. If you यदि don't आप want to पश्चाताप- repent, it is up to यदि you. आप पश्चाताप करना चाहते हैं, पश्चाताप करिए। Tell God, कहे प्रभु से, Lord, प्रभु oh, जी, Lord, use me, Lord. मुझे इस्तेमाल कर प्रभु। Let me be a clean vessel. वो मैं होने दे पिता, मैं एक साफ बर्तन बनूं। Let me be a clean vessel, Lord. होने दे पिता, मैं साफ बर्तन बनूं। Yes. In 2 Timothy said, God will fill only a clean vessel. और सेकंड तिमोथी में बोलता है कि परमेश्वर सिर्फ शुद्ध बर्तन को भरेगा। Oh God, tell God this evening, आज की शाम प्रभु से कहे, मेरे प्रिय, Lord, I want to be a vessel of honor. ओ प्रभु, मैं एक आदर का बर्तन, आदर का पात्र बनना In चाहता a हूँ। house, there are different kinds of और vessels. घर में विभिन्न प्रकार के बर्तन होते हैं प्रिय, Some gold, some silver, कुछ some सोने brass, के, कुछ चांदी के, कुछ some hay. ओ कुछ बर्तन, कुछ मिट्टी के और कुछ कम। You have to determine yourself आज अपने आप को आप दृढ़ निश्चय लेना, what kind of vessel किस you तरह want. का बर्तन आप बनना चाहते हैं। Whether you want to be a vessel of honor क्या आप आदर के पात्र बनना चाहते हैं, or you want to be a vessel of या फिर dishonor. आप एक खराब बर्तन बनना चाहते My friend, the Yes. choice is in your हैं। hand. मित्रों, जो चुनाव है मेरे दोस्तों, वो आपके हाथ I can only tell you, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ, कह सकता हूँ। let us be people who will hunger for the presence of God 24 hours 7 in our life. मेरे प्रियो, आइए आज हम ऐसे पीढ़ी बन जाएं जो खुदा की उपस्थिति के लिए सातों दिन 24 घंटे एक तड़प भरे प्यास से भर जाए। Nothing in this world can satisfy. इस संसार का कोई भी चीज तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकता। Jesus, you're the cup that won't run dry. और यीशु ही ऐसा प्याला है जो सूखा नहीं बहता। Your presence is like heaven. परमेश्वर की उपस्थिति आपके लिए अब है, स्वर्ग जैसा है। How many of you want to say that this कितने evening? लोग आज इस बात को कहना चाहेंगे अपने जुबान से, परमेश्वर तेरी उपस्थिति मेरे लिए स्वर्ग सा हाथ है। उठाएं. हाथ उठा के कहें, Tell God, आज कहें प्रभु, मैं सब कुछ आपको देना पिता चाहता मैं सब कुछ आपको देना हूं. चाहता सब कुछ देना चाहता हूं. I want to give everything to you, हूं। Lord. I want to give everything to you. मैं सब कुछ आपको देना चाहता हूँ।
सब कुछ देता। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, बोलिए सब लोग बोलिए, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तुझको मुबारक हो जी, सब मैं देता हूँ। तुझको मुबारक हो जी, सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, छूता तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे ले और अपना कर। यीशु को मैं सब कुछ देता, छूता तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे ले और अपना कर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तुझको मुबारक हो जी, सब मैं देता हूँ। तुझको मुबारक हो जी, सब मैं देता हूँ। Lord, we come before your throne of grace. प्रभु तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास हम आते हैं। We surrender our lives, हम Lord. अपने जीवन को तुझे समर्पित करते हैं। Our pride, हमारा घमंड, our arrogance, हमारे जो अंदर का जिद्दिया घमंडीपन का जो आत्मा, कठोरता की आत्मा, our stubbornness, हमारे जिद्दीपन की आत्मा, not realizing, Lord, हम इस बात को महसूस नहीं करते। how far away we are from ओ you. प्रभु, इस बात को स्मरण न करके कितना दूर है आपसे। We are following the lifestyle of this world. हम इस संसार की जीवन शैली को अपना लेते हैं। When you desire Oh, that Prabhu. we follow your footsteps. और हम जब आपके पीछे नक्शे कदम पे चलने की इच्छा हमने जाहिर की, Like the prodigal son, प्रभु जी उस उड़न पुत्र के समान let us come back to हो ourselves. जैसे पिता, हम अपने पिता आपके पास लौट आने पाए, अपने आप आने के लिए, अपने स्वयं से हम तेरे पास आने की yeah. Coming to our own self, Lord. पिता, हम स्वयं से अपने से आपके पास आने पाए। Lord, speak to us this evening. आज की शाम हमसे बातें Touch कीजिए, us, हमें छुइए, transform us, हमें परिवर्तित करिए, change us, Lord. बदल दीजिए। Let us not live that kind of hypocritic life. ओ पिता, होने दे एक कपटियों के समान हम जीवन न जिए। Lord, what a sad thing when we stand before the judgment seat. कितनी दुख की बात होगी जब उस न्यायासन के पास हम When you खड़े say, you hypocrite, और I जिस- don't know you. और जब आप कह देंगे, हे कपटियों, मैं तुम्हें नहीं जानता, Oh, that will be a dangerous वो thing. दिन हमारे लिए बहुत खतरनाक दिन। Better for us to repent right now. बेहतर होगा प्रभु कि आज हम अपने गुनाहों से पश्चाताप करें। Take away all the flesh and all the things, all the
pride and ego in our life. पिता हमारे जीवन से वो सारी की सारी अभिलाषाएं और वो घमंड और वो कपटपन का जीवन जिससे करके आत्मा हट Give us a humble spirit. हमें नम्र दिल दीजिए पिता। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगता हूं, सब कहेंगे आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम समस्त विश्वासियों के साथ सदा सदा लोग होती है। Amen. We give all the glory to Jesus and tell of His love, His wonderful love. We give all the glory to Jesus and tell of His wonderful love.